ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، آپ جانے اور آپ کا دادا۔ اس نے آخری چال چلی اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ 1 منٹ میں اسے رکنے کا کہہ کر وہ بادل نوازا لکڑی کے منکش دروازے کی طرف بڑھا اور جھجکتے ہوئے دروازے کے اوپر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ تناوش کو اس کے چہرے پہ پسینے کے قطرے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یقیناً یہ کبیر دادا کا روبی تھا کہ اس کے خاص بندی کی بھی ڈر کے مارے یہ حالت ہو رہی تھی۔ لمحہ بھر بعد ہی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ وہ قمیض اتار چکا تھا اور بے بازو کی سفید بنیان، پتلون اور ہوائی چپلوں میں وہ دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر حیرانی کے اثرات تھے۔ خدمتگار نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، باس، آپ کی دوست ملنے کے لیے اصرار کر رہی تھی۔ میری دوست؟ اس کے لہجے میں شامل حیرانی تناوش کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے صوفے پر بیٹھی تناوش کی طرف دیکھا، جسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ جی یہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ… اس نے ہکلاتے ہوئے بات پوری کرنا چاہی، مگر اس سے پہلے کبیر دادا کا ہاتھ گھوما اور کولوں کے بل نیچے جا گرا تھا۔ مزید کچھ کہے وہ دروازہ بند کرنے ہی لگا تھا کہ تناوش ہمت کرتے ہوئے آواز بلند بولی، کبیر دادا، مجھ سے بات کی بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ اس کی بات پر کبیر دادا کو جھٹکا سا لگا تھا۔ دروازہ بند کرنے کا ارادہ تبدیل کرتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس مرتبہ اس کی آنکھوں میں دلچسپی کے آثار نمایاں تھے۔ تمہیں شاید اس ٹٹ پونجی جسٹس نے بھیجا ہے۔ کمرے سے باہر آ کر وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ نرم و نازک چھوئی ہوئی لڑکی اس کے سامنے یوں نظر آ رہی تھی جسے شیر کے سامنے خرگوش دکھتا ہے۔ میں ذاتی کام سے آئی ہوں۔ ہمت مشتماش کرتے ہوئے اس نے کبیر دادا کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے لیے اسے اپنا سر کافی اوپر اٹھانا پڑا تھا۔ شیر بھر تمہیں میں ہی سوشل ورکر نظر آیا ہوں، طنزیہ لہجے میں کہہ کر وہ پیچھے مڑا۔ بات سن لینے میں حرج ہی کیا ہے، شاید آپ کو بھی کوئی فائدہ نظر آ جائے۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہارے پاس 2 منٹ ہے، جس میں سے 5 سیکنڈ گزر چکے ہیں۔ اس نے کلائی پر بندھی سنہری ڈائل کی قیمتی گھڑی آنکھوں کے سامنے پکڑ لی تھی۔ مجھے ایک آدمی کو قتل کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کی مدد چاہیے۔ بدلے میں آپ کو جو بھی درکار ہوگا میں دوں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے کہا برآمد ہوا جو بالکل اوپر لگ رہا تھا۔ یقیناً اس کے ہونٹ ہنسنے کے لیے نہیں بنے تھے۔ لڑکی، مجھے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تم کیا چاہتی ہو۔ ایک بات تو یقینی ہے کہ تم کبیر دادا اسے ذرا بھی واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ آپ مجھے تھوڑا وقت دیں گے تو میں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں گی۔ 2 منٹ میں کیا وضاحت کر سکتی ہوں؟ اچھا بولو۔ صوفے پر نشست سنبھالتے ہوئے اس نے تھپڑ کھائے ہوئے خدمتگار کو دفع ہونے کا اشارہ کیا۔ تناوش کو بیٹھنے کا اس نے نہیں کہا تھا۔ وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے نشست سنبھالتے ہوئے کہنے لگی، میں ایک بے سہارا یتیم لڑکی ہوں۔ ہمارے محلے کا غنڈہ دلاور شیخ مجھے آئے روز تنگ کرتا ہے۔ نہ تو اس ظالم کے خلاف پولیس کوئی کارروائی کرتی ہے اور نہ کوئی محلے دار ہماری مدد کرتا ہے۔ اس نے میرے بڑے بھائی کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں BA کر لوں گی وہ مجھ سے زبردستی شادی کرے گا، اور اگر اس سے پہلے میں نے کسی سے شادی کی کوشش کی تو وہ اسے قتل کر کے اسی وقت مجھ سے شادی کر لے گا۔ تو کبیر دادا نے ساری تفصیل سنتے ہی کندھے اچکائے۔ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ تناوش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے باکی سے کہا، مجھے تمہاری خوبصورتی سے کیا لینا دینا؟ دلاور شیخ کو قتل کرنے میں میری مدد کرو اور مجھے حاصل کر لو۔ یہ بات کرتے ہوئے اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تم پاگل ہو یا احمق؟ دلاور شیخ سے اپنی عزت بچانے کے لیے تم اپنی عزت ہی بیچ کر اسے مارنا چاہ رہی ہو۔ عزت نہیں بیچ رہی، بلکہ ہم دونوں کا نکاح پڑھایا جائے گا۔ کیا؟ یقیناً تم جاگتے میں خواب دیکھنے کی عادی ہو۔ کبیر دادا نے اٹھنے کے لیے پر تولے۔ اتنی دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد تناوش کے دل میں کوئی جھجک تھی بھی تو ختم ہو چکی تھی۔ وہ فوراً اسے روکتے ہوئے بولی، صرف نکاح پڑھوا لینا، اس کے بعد بے شک مجھے اپنی رکھیل سمجھ کر پاس رکھنا۔ رکھیل ہی سے سلوک کرنا، اپنے جاننے والوں کو بھی یہی بتانا کہ میں تمہاری رکھیل ہوں۔ مجھ سے زیادہ کسی کو اپنا وفادار بھی نہیں پاؤ گے۔ بس میرے دل میں بھڑکتی آگ پر دلاور شیخ کا خون چھڑکنے میں میری مدد کر دو۔ میرے پاس وفاداروں کی پوری فوج ہے، تم جیسی کمزور کی وفاداری سے مجھے کیا حاصل؟ کبیر دادا نے بظاہر منہ بنایا، مگر نہ جانے کیوں تناوش کو اس کا بیزاری ظاہر کرنا مصنوعی لگ رہا تھا۔ میں 18 سال کی ہوں، ان بازاری آبرو باختہ عورتوں سے کئی گنا بہتر ہوں جو بستر کی زینت بننے پر تلی رہتی ہیں۔ مجھے جب تک پاس رکھو گے صرف آپ کی خدمت کرتی رہوں گی۔ جب دل بھر جائے طلاق دے کر واپس بھیج دینا۔ کوئی حق مہر، کوئی روپیہ پیسہ نہیں، بس دلاور شیخ کا خون ہی میرا مہر ہوگا،
और यकीन मानो आपके इर्द गिर्द जो वफादारों की फौज है, इनमें से अक्सरियत इनकी है जो आपसे नफरत करते हैं। बस डर ने इन्हें चापलूसी और खिदमत करना सिखा दिया है। वो इसकी बातों पर लुत्फानंदोज होते हुए बोला, तुम्हारी खूबसूरती और दोशीज़गी के हसूल के लिए मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है? तुम यूं भी मेरी कोठी में खुद चल कर आई हो और इतना मौका मेरे लिए काफी है। बल्कि मैं चाहूँ तो तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से उठाकर ले आ सकता हूँ। यकीनन अपनी फितरत के मुताबिक आपका यही सोचना बनता है, लेकिन सच बताएं, कभी किसी लड़की की पुरखुलूस मोहब्बत महसूस की है? कोई ऐसी लड़की जिसकी सोचें आपसे शुरू होकर आप पर ही खत्म हो? कोई ऐसी जिसकी अव्वलीन तरजीह आपको सुकून और आराम पहुंचाना हो? मेरा ख्याल है इस मुकालमे बाजी को रहने दो। बाकी इसमें शक नहीं कि तुम जैसी लड़की को हर मर्द अपने हिस्से की जीनत बनाना चाहेगा, और मैं एक मर्द ही हूँ। तुम्हारे हुसूल के लिए घंटे डेढ़ की कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन याद रखना अपने वादे से फिरोगी नहीं। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली, अपनी बात से 1 इंच भी नहीं हटूंगी। फिर कब? कल मैं दुल्हन बनकर अपने घर में मुंतजिर रहूंगी और कल निकाह पढ़ाते ही आप मुझे अपने साथ लेते आना। निकाह पढ़ाना जरूरी है क्या? कबीर दादा ने हल्की सी मुस्कुराहट से पूछा। इसे खुद मालूम नहीं था कि वो इस कमसिन लड़की की हर बात कैसे मानता जा रहा है, वरना इसे लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। हाँ, बस ये नापायदार गिरा मेरे नसीब कर देना, इसके अलावा कुछ नहीं मांगूंगी। तनाउश की आवाज गुलगीर होने लगी थी। मेरा मोबाइल फोन नंबर नोट करो, जब जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। ये कहते ही इसने अपना जाती मोबाइल फोन नंबर दोहराया। इसका नंबर अपने मोबाइल फोन में नोट करके वो खड़ी होते हुए बोली, वैसे कल दोपहर को मैं मुंतजिर रहूंगी, और याद रखना दिलावर शेख को मैं अपने हाथ से कत्ल करूंगी। कभी मुर्गी भी ज़िबा की है? तंजिया लहजे में कहते हुए वो भी अपनी निशिस्त से उठ गया था। नहीं, इसने नफी में सर हिलाया। दिलावर शेख से इब्तिदा करूंगी, और यूं भी आप जैसे बड़े दादा की बीवी को कम से कम एक कत्ल तो करना चाहिए। पता नहीं तनावुश इसके लहजे में ऐसी कौन सी बात थी कि वो बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ा था। तनावुश को महसूस हुआ कि वो मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा लगने लगता था। कल मिलेंगे। वो अपने ख्वाब की तरफ बढ़ गया। तनावुश इसकी पूछ को घूरती रह गई थी। इसके कमरे में गायब होते ही वो बाहर की तरफ चल दी। ड्राइंग रूम से बाहर ही इसे वही खिदमतगार चेहरे पर गैज़ो गज़ब के तासरात सजाए खड़ा नजर आया। इसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही तनावुश को अपनी हंसी जब्त करना मुश्किल हो गया था। वो इसे मुतबस्सम देखकर दांत पीसते हुए बोला, देख लिया आपने झूठ का अंजाम? वो हंसी। कौन सा झूठ? अभी इतनी देर में कबीर के साथ गपशप ही कर रही थी ना, फिर उन्होंने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तनाफुश ने छेड़ते हुए कहा, इस वजह से कि आपने मुझे इतनी देर क्यों रोके रखा? अच्छा, अब दिमाग ना खाओ और जाओ। यकीनन वो कबीर दादा के तनाफुश के साथ इतनी देर बातचीत की वजह से कुछ कह नहीं पा रहा था। मुझे घर तक जाने के लिए गाड़ी चाहिए। तनाफुश को एकदम घर तक पैदल चलने का ख्याल आया और उसने फौरन इसका हल सोच लिया। वो मुंह बनाते हुए बोला, इस बारे में मुझे कोई हुक्म नहीं मिला। ठीक है, मैं कबीर दादा को कह देती हूँ। वो पीछे मुड़ी। बात सुनो। इसने इतनी जल्दी तनावुश को आवाज दी कि वो पूरी मुड़ भी नहीं पाई थी। इसने रुकते हुए शौकी भरे लहजे में कहा, सुनाए। वो दोनों हाथ बांधते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ ड्राइवर को भेज देता हूँ, अब तशरीफ ले जाओ मेरी माँ। ये कहते ही इसने मोबाइल फोन निकाल कर किसी इलाही बख्श नामी ड्राइवर को कॉल करके बताया कि वे कबीर दादा के मेहमान को घर तक छोड़ आए। तनावुश वही ड्राइवर का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद एक उदेड़ उम्र ड्राइवर सफेद रंग की टोयोटा लेकर वहीं पहुंच गया। तनावुश के करीब का रोक कर इसने उकबी नशस्त का दरवाजा इसके लिए खोल दिया। वो एतमाद जाहिर करते हुए बैठ गई। दरवाजा बंद करके वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार कबीर दादा की वसी और रीस कोठी से बाहर आ गई। वो ड्राइवर को घर का पता बताकर दाएं बाएं का जायजा लेने लगी। इस कीमती कार में बैठे हुए रास्ते के मनाजिर भी खुशकुन और काबिल दीद हो गए थे। जिंदगी में पहली बार वो इतनी कीमती कार में बैठी थी। इसका दिल चाह रहा था कि बकिया जिंदगी इसका सफर खत्म ना हो और वो यूं ही आरामदार सीट पर बैठी हुए सफर रहे, मगर इसे पता भी न चला कि वो तवील फासला लम्हों में तय हो गया। यकीनन पैदल जाते हुए इसे घर तक पहुंचते हुए शाम हो जानी थी। वो कार को सड़क ही पर रोको वहाँ कर उतर गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दिलावर शेख का कोई चमचा इसे कार से उतरते देखकर ड्राइवर को छेड़ने की कोशिश करे, और ऐसा होने की सूरत में दिलावर शेख तक कबीर दादा का नाम पहुंच जाता और इसने बुज़दिल ने भागने में एक लम्हा भी नहीं लगाना था। जबकि वो इसे कत्ल करने के लिए इतनी बेताब और बेसब्र होती जा रही थी कि इससे कल तक का इंतजार मुश्किल हो रहा था। सड़क से फरलांग भर के फासले पर इसका घर था। घर में दाखिल होते ही इसे माँ बेचैनी के आलम में मुंतज़िर नजर आई। इतनी देर लगाती बेटी? तनाफुश को देखते ही इसने परेशानी भरे लहजे में पूछा। वो सुकून भरे अंदाज में बोली, हाँ माँ, आज बहुत दूर निकल गई थी, इतना दूर कि अब वापसी भी नामुमकिन हो गई है। दिमाग तो ठीक है, क्या हौल फौल बक रही है?
बुशरा ने प्यार भरे अंदाज में से डांटा। अम्मी जान, आप चाहती थी ना कि मेरी शादी हो जाए और हम शाहनवाज भाई के कातिल को भी इसके अंजाम तक पहुंचा दें? इसने ख्वाबनाक लहजे में पूछा। हाँ बेटी, मगर ये भी जानती हूँ कि ये वो ख्वाहिश है जो हमेशा तमन्ना का रूप ही धारा रखेगी। अम्मी जान, सुना है मकसद की तकमील कुर्बानी मांगा करती है। वो हसरतनाक लहजे में बोली। ठीक सुना है बेटी, मगर हम किस चीज की कुर्बानी देकर इस खबीस को जहन्नुम वासिल करें? वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली। इसका बंदोबस्त हो गया है। मैं कुछ समझी नहीं। तनावुश के लहजे में कोई ऐसी बात जरूर थी जो इसका दिल धड़का रही थी। माँ, आज मैं अपना रिश्ता तय कर आई हूँ। गो मुझे आपसे इजाजत मांग लेना चाहिए था, मगर मेरे पास इतना वक्त नहीं था और ऐसा मौका दोबारा ना मिलता। बुशरा ने करीब होकर इसे बाजू से थामते हुए पूछा। होश में तो हो ना? पता नहीं माँ जी, बस वो मुझे अच्छा लगा, अपना लगा, बाख्तियार लगा और मैंने बगैर सोचे समझे इसे शादी की ऑफर कर दी। बुशरा मतूश होते हुए बोली। कहीं किसी और गरीब को जान से ना मरवा देना। तनावुश के चेहरे पर मायने खैज मुस्कुराहट नमूदार हुई। अम्मी जान, आपने हमेशा दिलावर शेर को बेख्तियार दरिंदे के रूप में देखा है। कल इंशाअल्लाह आप इसका वो रूप देखेंगे जिसकी तमन्ना में हम दोनों पिछले कई माह से दुआ हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? बुशरा के लहजे में बेयकीनी थी। मुमकिन और नामुमकिन के दरमियान बस रब की मर्जी की रुकावट है माँ जी। जब वो बेनियाज कुन फरमाता है तो फिर हर नामुमकिन साबित कदमी भूल जाता है। ऐसा बख्तियार और साहिब हैसियत तुम्हें कहाँ से मिल गया बेटी? और फिर वो तुम जैसी गरीब लड़की के साथ शादी पर कैसे राजी हो गया? मुझे तो लग रहा है तुमने जागते में ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। बुशरा को बेटी की बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। खुद तो कहती हैं कि आपकी बेटी शहजादी है, फिर शहजादियों को तो शहजादे ही मिला करते हैं ना माँ जी। इसकी आंखों में कबीर दादा की सूरत ले आई, उसके साथ ही इसके दिल में ख्वाहिश जागी, काश इस जैसा वो माँ को कह रही है वैसा ही होता। अच्छा, मुझे सारी बात तफसील से बताओ। आज मैं स्कूल नहीं गई थी, बस यूं ही दाएं बाएं घूमती रही और फिर वो मुझे एक होटल के बाहर नजर आया। इस हालत में एक जज इसके सामने हाथ बांधते हुए गिड़गिड़ा रहा था। मैं जान गई थी कि वही ऐसा है जो मुझे दिलावर शेर के चंगुल से निजात दिला सकता है। मुझे अल्लाह पाक ने इससे बात करने का मौका दिया और मैंने फौरन अपनी मजबूरी इसके सामने बयान कर दी। लेकिन ये तो आप जानती हैं ना माँ जी कि इस दुनिया में ले दे का उसूल ही कार फरमा है। बस मैंने दिलावर शेर की मौत के बदले खुद को इसके सामने पेश कर दिया। अलबत्ता परेशान ना हो, वो मुझे निकाह पढ़ा कर ही साथ ले जाएगा। इसने बहुत सारी बातें हजफ करते हुए जमालन सारा वाकया सुना दिया। मुझे तो ये आसमान से गिर कर खजूर में अटकने वाला मामला लगता है। तुमने दिलावर शेर से जान छुड़ाने के लिए इससे भी बड़े गुंडे का साथ अपना लिया है। माँ जी, मैं बस एक बात जानती हूँ कि मुझे दिलावर शेर से भैया की मौत का बदला लेना है। इसके लिए मैं हर कीमत अदा करने को तैयार हूँ। अगर दिलावर शेर ने भैया के खून से हाथ ना रंगे होते तो शायद मैं इतना बड़ा कदम ना उठाती। अब क्या होगा? मेरा तो दिल हौल रहा है। बुशरा खातून की परेशानी में कई गुना इजाफा हो गया था। दिलावर शेष वाले मामले में कुछ मोहलत इनके पास मौजूद थी। इसकी बेटी तो एकदम ही तूफान सर पर ले आई थी। इत्मीनान रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ जी। इसने एतमाद भरे अंदाज में माँ को तसल्ली दी। तुम नहीं जानती मेरी जान, ऐसे बाइख्तियार और साहिब हैसियत लोगों के लिए हम गरीब मखमल में टाट का पैबंद जितनी अहमियत रखते हैं। इसने बस तुम्हारी सूरत देख कर शादी की हामी भरी है। तुम्हें चंद दिन इस्तेमाल करने के बाद वो तलाक की 3 लफ्ज बोलकर तुम्हें वापस फेंक देगा। वो मुस्कुराई। तो क्या मैं पहले मुतालिका होंगी? ना जाने हवा की कितनी बेटियां रोजाना तलाक का दाग अपनी पेशानी पर सजाकर माँ बाप के दरवाजे पर आ बैठती हैं। इनमें एक का इजाफा सही और उम्मीद है मुझे दूसरी शादी के लिए भी इतनी तगोदो नहीं करना पड़ेगी। सबसे बढ़कर दिलावर शेर जैसी नहूसत से हमारी जान छूट जाएगी। तुम्हें अकेला इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए था। कम से कम मुझसे मशवरा तो कर लेती। बेटी की बातों से इत्तेफाक करने के बावजूद इसे इत्मीनान महसूस नहीं हो रहा था। अम्मी जान, कहा तो है, मशवरा या इजाजत लेने का वक्त मेरे पास नहीं था। अगर मैं वो मौका गवा देती तो फिर वही कुड़ना सुलगना वही मुकद्दर ठहरता। अगर इस सौदे से पीछे हटना मुमकिन है तो बेहतर होगा इस शख्स को मना कर दो, बल्कि माफी मांग कर अपनी जान छुड़ा लो। माँ ने इसकी हौसला शिकने में कोई दकीका फरूग गुज़श्त नहीं किया था। एक बार तनावुश के दिल में भी ख्याल आया कि माँ की बात मान लेना चाहिए, मगर इसके साथ ही कबीर दादा की कदावर और पुररोब शबिया इसकी आंखों के सामने लहराई और वो अपने फैसले पर डट गई। माँ जी, अगर वो मुझे खुद भी मना कर दे तब भी मैं पीछे हटने को तैयार नहीं। आप नहीं जानती मेरे दिल में दिलावर शेख से बदला लेने के लिए कैसी आग भड़क रही है। इस अलाव को दिलावर शेख का खून ही बजा सकता है। अगर तनावुश को भाई के कातिल से इस दर्जा नफरत थी तो इसके बेटे का भी तो कातिल था। वो फरमाबरदार और खिदमत करने वाले बेटे की हैसियतनाक मौत को कैसे भुला सकती थी?
बेटी से कई गुना ज्यादा वो खुद दिलावर शेख को कैफर किरदार तक पहुंचाने की ख्वाह थी। तनावुश के तरीकेकार से इख्तिलाफ रखने के बावजूद आखिर इसे मुत्तफिक होना पड़ा। वो हार मानते हुए बोली, ठीक है बेटी, बस यही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक तुम्हारा नसीब अच्छा करे, आमीन कहकर तनावुश ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया था। रात को तनावुश माँ के साथ मिलकर अगले दिन का मंसूबा तय करती रही। ना चाहते हुए भी बुशरा को बेटी का साथ देना पड़ गया। तनावुश सुबह स्कूल जाने के बजाय माँ को साथ लेकर मौलवी महबूब इलाही के घर की जानिब चल दी। इस वक्त मौलवी साहब घर ही में मौजूद थे, काफी मुज़महिल और थके थके लग रहे थे। माँ बेटी को देखकर मौलवी की बीवी ने तो नाक मुंह चढ़ाई थी, मगर मौलवी महबूब इलाही खंदा पेशानी से पेश आया था। बैठो बहन, तनावुल के सर पे शफकत भरा हाथ रखते हुए इसने बुशरा को बैठने की दावत दी। इसके साथ ही वो अपनी बीवी को मुखातिब हुआ, सुगरा की माँ चाय तो पिलवा दो, चाय हम पीकर आए हैं भाईजान। बुशरा ने रस्मी से इनकार किया। मौलवी महबूब इलाही ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके बहाने मैं भी पी लूंगा बहन जी। इसकी बीवी अलबत्ता बुशरा के इनकार से पहले ही बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई थी। तो आपने यहाँ से जाने का पक्का इरादा कर लिया है? बुशरा दुखी दिल से पूछने लगी। मजबूरी है बहन, जो लोग आज एक बेटी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं हो सकते, इनसे मजीद क्या तवक्को की जा सकती है? भाइया, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, मगर आप जिस जगह भी तशरीफ ले जाएंगे वो भी तो ऐसे ही लोग होंगे। ये तो हमारा कौमी मिजाज बन चुका है। हम जुल्म के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाते। अगर हम मुतहद होते तो क्या कराची की यह हालत होती? ना पीने का पानी मुयसर, ना सड़कों की हालत किसी काबिल है। लोड शेडिंग की सूरत हाल मुलाहिजा फरमा ले और नगर्दी का राज है। ये सब और इसके अलावा भी हजारों मसाइल का क्या एक ही हल है ना, कि हम मुतहद हो जाए? मगर हमारे हालात चंद भेड़ियों के सामने भागते हुए इस रेवड़ की सी है जिसमें हर भेड़ बकरी के दिल में अपनी जान बचाने की धुन समाई होती है। मगर हम भेड़ बकरियां नहीं हैं बहन, हम इंसान हैं। अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। भेड़ बकरियां अगर चाहें भी तो भेड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारे साथ ऐसा कोई मसला नहीं, हमारी ही जिन्स के चंद उन्हें क्यों हम पे हुक्मरानी करे। भाईजान, छोड़ें इस दिल खराश मौजू को। यकीनन अकेले आपके चाहने से तब्दीली नहीं आ सकती। आप जिस अपने मुतालिक सोचे, यहाँ से जाना आपके लिए कतन मुफीद नहीं है। मौलवी महबूब इलाही दुखी लहजे में बोला, अब तो फैसला हो गया और सच बात कहूँ तो मैं यहाँ से जाने पर मजबूर हूँ। ऐसी भी क्या मजबूरी है? आपका मसला हमें परेशानी से निकालना था, इसका हल हमने ढूंढ लिया है। कैसा हल? मौलवी महबूब इलाही के लहजे में इश्तियाक भरा था। बुशरा इत्मीनान से बोली, आज दोपहर को तनावुश बेटी का निकाह और रुखसती है। किसके साथ और यूं एकदम कैसे? इस बूजी के बारे में क्या सोचा? सब कुछ ठीक हो जाएगा चाचा जान, बस एक ख्वाहिश है कि मेरा निकाह आप खुद पढ़ाएं। खामोश बेटी, तनावुश ने जबान खोली। मैं बहुत कमजोर और बेबस आदमी हूँ बेटी, यकीन मानो ये बहुत बड़ी सादर और खुशकिस्मती होती कि मुझे अपनी बेटी का निकाह पढ़ाने का मौका मिलता, मगर इस बदबख्त की धमकी नजरअंदाज करने के काबिल नहीं है। और सच कहूँ तो ये मोहल्ला छोड़ देने का हुक्म भी मुझे इसी खबीस ने दिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेबसी का मजाक उड़ाया जाए या पेट पीछे ये कहा जाए कि देख लो किसी और के काम में दखल अंदाजी का ये अंजाम होता है। बस इसी वजह से मैंने मोहल्ला छोड़ने का असल वजह से पर्दा नहीं उठाया। तनावुश एतमाद से बोली, चचा जान, मैं वादा करती हूँ कोई आपको हाथ भी नहीं लगाएगा, और अगर मजबूर होकर ये मोहल्ला छोड़ रहे हैं तो इंशाल्लाह आज इस मजबूरी का खात्मा हो जाएगा। मौलवी अब्दुल महबूब इलाही बेयकीनी से बोला, ये भला कैसे मुमकिन है? तनावुश ने कहा, इस बात को राज ही रहने दे चचा, कि आपको दिलावर शेख ने हमारी मदद करने से मना किया है, निकाह पढ़ाने से तो नहीं रोका। इसी वक्त मौलवी महबूब इलाही की बीवी चाय के बर्तनों के साथ वहाँ पहुँच गई। इसने बावर्ची खाने में इनकी सारी गुफ्तगू सुनी थी। प्यालियों में चाय उंडेलते हुए तीखे लहजे में बोली, बुशरा बहन, बेहतर होगा अब हमें अपने साथ घसीटना बंद कर दें। पहले भी आपकी मदद करने का सिला हम भुगत रहे, ये ना हो कोई और मसला खड़ा हो जाए। यकीनन आप लोगों ने अपनों से बढ़कर हमारा साथ दिया है और हमारी वजह से आपको बहुत ज्यादा तकलीफें भी बर्दाश्त करना पड़ी, मगर यकीन माने बहन, अब खतरे वाली कोई बात नहीं है। भाईजान पर कोई आंच नहीं आएगी। नहीं बहन, आप निकाह पढ़ाने के लिए कोई और मौलवी बुलवा ले। मौलवी की बीवी हामिदा दो टोक लहजे में बोली, ऐसा नहीं कहते नेकबख्त। मौलवी इनकी गुफ्तगू में मुखल हुआ। जिंदगी और मौत अल्लाह पाक के हाथ में है, आप खामोश रहें जी। हामिदा शोहर पर बरस पड़ी। पहले भी आपकी नेकी कमाने की शौक में हमें ये दिन देखना पड़ा। मैं नहीं चाहती कि घर के साथ हमें इज्जत के भी लाले पड़ जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा चची जान, तनावुश इसे तसल्ली देने लगी। हम तो बस इसलिए आए हैं कि चचा जान अपनी आंखों से इस मनहूस का अंजाम देख ले। सपने देखने बंद करो लड़की, ऐसा कुछ ड्रामों फिल्मों में तो हो सकता है, हकीकत में नहीं। दिलावर शेख जैसे दरिंदों की रस्सी को मालिक भी ढीला छोड़ते
रखता है। ऐसी म्यूजिक का हम जैसे कमजोर लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहन जी, हम मौलवी साहब को दिलावर शेख से लड़ाई करने की दावत देने नहीं आए, और खतरा तो लड़के वालों को होना चाहिए ना। मौलवी साहब तो निकाह पढ़ाने तशरीफ लाएंगे, और इस बात पर इस मनहूस दिलावर को क्या एतराज होगा। वो तो ठीक है, हामिदा ने कुछ कहने के लिए पर तोले, मगर मौलवी महबूब इलाही कत्ल कलामी करता हुआ बोला, ठीक है बहन जी, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं बाद नमाज असर हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह पाक आपको इज्जत दे भाईजान। बुशरा ने मामूनियत से कहा। मौलवी साहब का हौसला देखकर तनावुश की आंखें भी नम हो गई थी। वो बेसब्री से इस वक्त का इंतजार करने लगी जब दिलावर शेख जैसा जालिम अपने अंजाम से दो चार होता। मौलवी महबूब इलाही का हतमी जवाब सुनकर हामिदा भी खामोश रहना मुनासिब समझा था। चाय पी कर माँ बेटी वापस घर की तरफ चल पड़ी। मौलवी साहब के घर से निकलते ही इन्हें दिलावर शेख का मनहूस कारिंदा नजर आ गया था। गली के नुक्कड़ पर खड़ा वो मौलवी साहब के घर ही की जाने मुतवज्जा था। वो माँ बेटी के इकट्ठे कहीं जाने पर जरूर इनका पीछा करते। स्कूल जाने के अलावा तनावुश अगर अकेली कहीं जाती तब भी वो इसका ताक़ुब करते। अलबत्ता तनावुश के स्कूल जाते वक्त वो कभी इसके पीछे चल पड़ते और कभी जाने देते। गुज़श्ता कल भी उन्होंने तनावुश का पीछा नहीं किया था, वरना दिलावर शेख तक कबीर दादा और तनावुश की मुलाकात की खबर पहुंच जाती। इस मनहूस शक्ल के कारिंदे के पास से गुजरते हुए न जाने तनावुश को क्या सूझा कि वो इससे मुखातिब करते हुए बोली, दिलावर शेख को बता देना आज बाद अज नमाज असर मेरा निकाह और रुखसती है, अपने चमचों के साथ जरूर शिरकत करे। तनावुश की जुर्रत और बेबाकी पर दिलावर शेख के आदमी की आंखों में हैरानी नमूदार हुई, मगर फिर हैरानी पर इस्तेज़ा का अंसर गालिब आ गया। वो कहका लगा कर हंसा, जरूर भाभी। तनावुश इसका जवाब सुनने के लिए रुकी नहीं थी। यूं भी दिलावर शेख की वजह से इनमें से कोई भी इसे छेड़ता नहीं था। तनावुश को घर पहुंचाकर बुशरा खातून ने मोहल्ले में घूम फिर कर तमाम को बेटी की शादी में शिरकत की दावत दी थी। जिस तक ये बात पहुंचती गई वो शर्जदार होता गया। हर एक तफसील जानने का ख्वाह था, मगर सबके सवाल के जवाब में मुस्कुराकर बुशरा खातून ये कहती रही, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। घर पहुंचने पर इसे तनावुश अफसरदा अंदाज में बेटी नजर आई। यकीनन शादी करके घर से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत होना किसी भी लड़की के लिए बहुत अजियतनाक और मुश्किल मरहला होता है। पसंद की शादी करने वाली लड़की भी इस मौके पर आंखें बहाए बगैर नहीं रह सकती। यहाँ तो मसला ही और था। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए इसने अंधा जुआ खेला था। ना मालूम कबीर दादा इसके साथ कैसा सलूक करता। एक अजीब बात ये थी कि इसे कबीर दादा से कोई डर और खौफ महसूस नहीं हो रहा था। बलूगत की सीढ़ी पर कदम रखते ही हर लड़की की तरह इसने भी एक अंधे के शहजादे के ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे, जिसने इसका दूल्हा बनना था। इसके सपनों की राह में सबसे बड़ी रुकावट दिलावर शेख की सूरत में नमूदार हुई, जिसने खूबसूरत सपनों को छीनकर इसकी आंखों में आग व खून के ख्वाब सजा दिए थे। अब कबीर दादा से मिलने के बाद न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि वो हमेशा से इसी के ख्वाब ही तो देखती रही थी। बुशरा बेटी के करीब बैठते हुए बोली, अब परेशान होने का क्या फायदा, तीर कमान से निकल चुका है, बस नतीजे का इंतजार करो। वो माँ का हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाते हुए बोली, माँ जी, अब मैं अपने फैसले पर नहीं, आपसे जुदाई का सोच कर दुखी हूँ। वो इसे तसल्ली देते हुए बोली, जुदाई कौन सी, एक ही तो शहर में होंगे, मैं रोजाना अपनी बेटी को मिलने जाया करूंगी। नहीं माँ जी, तनावुश ने नफी में सर हिलाया, आप वहाँ कभी भी नहीं आएंगी, जब भी मौका मिला मैं खुद मिलने आ जाया करूंगी। क्यों? वह हैरान ही तो रह गई थी। क्या यह तुम्हारे होने वाले शौहर का हुक्म है? नहीं। एक मर्तबा फिर इसने नफी में सर हिलाया, ये भी मेरा अपना फैसला है, और फिक्र न करें, जब भी आपका दिल चाहेगा मैं मिलने आ जाया करूंगी। बुशरा मुस्कुराई, तो क्या मुझसे मिलने को तुम्हारा दिल नहीं चाहेगा? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? तनावुश शिकवा की ना हुई, मजाक कर रही थी चंदा। बुशरा ने झुककर बेटी का माथा चूम लिया। इसी वक्त दरवाजा खटखटाकर तनावुश की दो सहेलियां घर में दाखिल हुई। यकीनन स्कूल से वापसी पर इन्हें तनावुश की शादी की बाबत मालूम हुआ था और वो वहाँ भागते हुई वहाँ पहुँची थी। वो दोनों सगी बहनें थी। स्कूल के कपड़े तक वो तब्दील नहीं कर सकी थी। बुशरा इन्हें खुशामदीद कहकर वहाँ से हट गई थी। शाजिया और नाजिया ने आते ही 7 सवालों के बोचार कर दी थी। इन्हें भी दिलावर शेख के बारे में मुकम्मल मालूम था, बल्कि वो क्या पूरा मोहल्ला इस बात को अच्छी तरह जानता था। और अब वो हैरान इस बात पर थे कि आखिर दिलावर शेख की मुसीबत से इनकी जान कैसे छूटी थी। वो फखरिया लहजे में बोली, मेरे होने वाले शौहर के सामने दिलावर शेख की हैसियत एक कीड़े जितनी भी नहीं है। शाजिया ने पूछा, एकदम ऐसा रिश्ता तुमने कहाँ से ढूंढ लिया? तनावुश के जवाब देने से पहले दाखिली दरवाजे पर एक बार फिर हरकत हुई और इसकी एक सहेली सलमा घर में दाखिल हुई और इन दोनों बहनों की तरह वो भी आते साथ हैरानी का इजहार करने लगी। तनावुश इनकी हैरानी से महजूज होते हुए मुस्कुराई। क्या कहते हैं, जोड़े आसमानों पर बनते हैं और ये कि अल्लाह पाक जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बस मुहावरे ही सुनाती रहना, असल बात से पर्दा ना उठाना।
नाजिया ने तंग आकर दुहाई दी। वो कहकर लगाते हुए बोली, कबीर खान नाम है, 6 फुट से ऊंचा कद, कसरती जिस्म, चौड़ी छाती, गंदमी रंगत, कुशादा पेशानी, मोटी सायराना आंखें, मजबूत हाथ पांव, बहुत बड़े कारोबार, बंगले और कई कारों का मालिक है। सास ससुर नंद देवर की आलूदगी से पाक। इतना काफी है या कुछ और बताऊं? सलमा ने मुंह बनाते हुए कहा, बोलती रहो झूठ, तुमसे तो अल्लाह मियां जरूर पूछेगा। इस दौरान इसकी 2-3 और सहेलियां भी पहुंच गईं। थोड़ी देर कबीर दादा की शख्सियत को मौजूद गुफ्तगू बनाए रखने के बाद वो तनावुश को दुल्हन बनाने के दर पे हो गई। पहले पहल तो तनावुश ने सख्ती से इनकार कर दिया, फिर इसे अपना रवैया मसनूई लगा। शादी के दिन लड़की का बनाव सिंगार करना रस्म रिवाज का हिस्सा था, बल्कि इस बारे तो शरीयत का हुक्म भी था। सबसे बढ़कर वो कबीर दादा को खुसूसी इनाम से नवाजना चाहती थी। जब इससे मुआहदा हो ही गया था तो अपने अल्फाज का पास रखने ही में इसे भलाई नजर आई। इसके पास मेकअप का कोई सामान मौजूद नहीं था। वो इस किस्म की आयाशियों के मुतामिल हो सकती थी। ज्यादा से ज्यादा सर पे तेल लगाकर कंघी कर देना ही इसकी तैयारी में शामिल हो जाता। यूं भी हुस्न को सजावट की जरूरत नहीं होती, मगर अब इसकी शादी होने जा रही थी और दुल्हन की सजावट तेल कंघी तक महदूद नहीं होती। इसकी सहेलियों की नजर से भी इसकी गुर्बत ओझल नहीं थी। इसकी माँ के हाथ बाजार से मेकअप का सामान मंगवाने के बजाय सलमा अपना मेकअप बॉक्स उठा लाई थी। वो एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती थी। आजकल यूं भी एक साहिब हैसियत लड़की के पास मेकअप का इतना सामान मौजूद होता है कि जिससे छोटे मोटे ब्यूटी पार्लर की जरूरियात पूरी हो सके। एक गरीब औरत जो बेटी की माँ हो, बेटी की पैदाइश के साथ ही इसके जहद की फिक्र में मसरूफ हो जाती है। शादी की खरीदारी के लिए उमरा और गरीबों का तरीकाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। अमीरों की खरीदारी शादी से चंद दिन पहले शुरू हो जाती है, जबकि गरीब की सारी जिंदगी बेटी का जहेज तैयार करते गुजर जाती है। तनावुश की माँ ने भी इसके लिए थोड़ी बहुत ज्वेलरी और चंद लिबास खरीद रखे थे। इन्हीं में से एक सुर्ख रंग का जोड़ा तनावुश को पहनाकर उन्होंने दुल्हन का रूप दे दिया था। शादी की तकरीब घर के अंदर ही होना करार पाई थी। इनका घर 12 मरले पर मुश्तमिल था। 2 कमरे, एक बरामदा, फिर इसके सामने काफी खुला सहन बच जाता था। बुशरा खातून के पास इतनी इस्तिताअत नहीं थी, वरना वो इस घर को बेहतर अंदाज में तामीर करा कर किराए पर भी चढ़ा सकती थी। वो 2 कमरे भी इसके शोहर रफीक ने अपनी जिंदगी में ही बना छोड़े थे। अब तो बुशरा मुश्किल से अपना और बेटी का पेट ही पाल रही थी। तामीर की मद में कहां से रकम लाती। बुशरा ने शाजिया के भाई को कहकर एक कनात किराए पर मंगवा कर बरामदे के सामने लगा दी थी, ताकि औरतों और मर्दों के दरमियान पर्दा कायम हो सके। कमरों में मौजूद 3-4 चारपाइयां उन्होंने मर्दों के बैठने के लिए सहन में बिछा दी थी। चंद चारपाइयां वो पड़ोसियों के घरों से भी मांग कर ले आए थे। शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल थी। मोहल्ले के चंद मर्द सहन में आकर बैठ गए थे। शादी में शिरकत के लिए तो वो हिम्मत करके आ गए थे, मगर उन्हें रह रह कर दिलावर शेख का खौफ घेरने लगा था। वो बहुत पहले से तनाव से शादी का दावेदार था। अब इसकी शादी पर इसने कहाँ खामोश रहना था, मगर अब तक वो वहाँ नहीं पहुँचा था। शायद वो बारात की आमद का मुंतजिर था। इसके 1-2 चमचे पड़ोसियों को बुशरा के घर के गिर्द घूमते नजर आए थे। असर की अजान सुनकर 2-3 आदमी नमाज के लिए मस्जिद की तरफ बढ़ गए, जबकि कुछ अजली बेहिसी से मालिक के कायनात की दावत को नजरअंदाज किए वहीं बैठे रहे। यकीनन इन्हें फलाह की जरूरत नहीं थी, वरना फलाह की जमानत यानी नमाज से गाफिल ना रहते। नमाज के बाद मौलवी महबूब इलाही भी पहुंच गया। मोहल्लेदारी में लोग आपस में पर्दे का एहतमाम कम ही करते हैं। इसके बावजूद मौलवी महबूब इलाही ने पर्दे के करीब जाकर अंदर जाने की इजाजत तलब करना जरूरी समझा था, ताकि कोई औरत पर्दा करना चाहे तो इसे इत्तला मिल जाए। बुशरा ने इसे खुशामदीद कहते हुए अंदर बुलाया। वो सीधा तनावुश के करीब पहुंचा और इसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, मैं आ गया हूँ बेटी, अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की इज्जत अता फरमाए। मौलवी साहब, तनावुश ने ममूनियत भरे अंदाज में कहा, आमीन, अल्लाह पाक हम सबको इज्जत से नवाजे। दुआई अंदाज में कहते हुए मौलवी महबूब इलाही बाहर निकल गए। इसी वक्त तनावुश ने मोबाइल फोन निकाला ताकि कबीर दादा का नंबर डायल कर सके। इससे पहले कि वो नंबर मिला थी, इसके कानों में दिलावर शेख की मनहूस आवाज पड़ी, अरे यहाँ तो सचमुच शादी का माहौल बना है। उन्हें शायद दिलावर शेख की ताकत के बारे में कोई शुबा हो गया है। लगता तो यही है बॉस, इसके एक चमचे की आवाज उभरी, और तुम सबको मेरा कोई खौफ नहीं रहा कि यहाँ इकट्ठे हो गए हो। यकीनन इस बुड्ढे आशिक मौलवी की कारस्तानी है। बेहुदा अंदाज में कहते हुए वो मौलवी महबूब इलाही की तरफ बढ़ा। क्यों बे मौलवी, तुझे कौन सा कीड़ा सुधरने नहीं दे रहा? इसके अंदाज से तनावुश समझ गई थी कि वो मौलवी इलाही की तरफ जा रहा है। सर पर दुपट्टा जमाते हुए वो सारात से बाहर निकली। इस वक्त तक दिलावर शेख महबूब इलाही को गिरबान से थाम चुका था। इसने कड़ाक कर कहा, 1 मिनट दिलावर शेख। वो हैरानी से इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। इसे देखते ही दिलावर शेख की मनहूस चेहरे पर खबासत नमूदार हुई। अरे वाह, यहाँ तो मेरी दुल्हन किसी और के लिए सजी हुई है।
मौलवी साहब को छोड़ दो दिलावर शेख, तनावुश ने अपनी बात दोहराई। अगर किसी में इतनी जरूरत है कि दिलावर शेख के इसका गिरबान छुड़ा ले तो आगे आ जाए। तू मर्द है कि हिजड़ा? तनावुश के अल्फाज ऐसे नहीं थे कि दिलावर शेख आपे से बाहर ना आता। वो कमींगी से बोला, बेफिक्र रहो, मेरी बरदानगी का सबूत तुम्हें आज रात मिल जाएगा बेबी। वो बात का मसला है, फिलहाल मौलवी साहब का गिरबान छोड़ो। क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि जब कोई मेरी बारात लेकर आएगा तो वो खुद भी जान से जाएगा और तुम मेरे बीए करने से पहले ही मुझसे शादी कर लोगे? बिल्कुल कहा था। दिलावर शेख ने छाती छोड़ी की। तुमने निकाह पढ़ाने वाले के बारे में तो कोई ऐसी बात नहीं की थी। फिर मौलवी साहब की तौहीन का मतलब? मेरे होने वाले शौहर से निपट लो, शायद इसके बाद मुझसे निकाह पढ़ाने के लिए तुम्हें भी मौलवी साहब की जरूरत पेश आ जाए। हाँ, ये तुमने काम की बात की है। मौलवी साहब का गिरबान छोड़कर वो अपने चमचों की तरफ मुतवज्जा हुआ। कर में जा, जरा पहलवान की दुकान से एक टुकड़ा मिठाई का तो उठा ला, आज इसे टुनटुने को खत्म ही कर रहे हैं। ठीक है बॉस। कर में नामी चमचे ने इस बात में सर हिलाकर बाहर करो। क्या तो निकाह की कार्रवाई शुरू करें? दोनों हाथों से हल्की सी ताली बजाते हुए इसने हाथ धोने के अंदाज में बोला। तनावुश बेबाकी से बोली, पहले मेरे शोहर से तो निपट लो। तो बुलाओ उसे, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि किसी टटपूंजी का इंतजार करता रहूं। तनावुश ने हाथ में पकड़े मोबाइल फोन पर कबीर दादा का नंबर डायल किया। मोबाइल फोन कान से लगा लिया। 2-3 घंटों के बाद किसी ने कॉल काट दी थी। इसका दिल अनजाने खौफ से धड़का और वो दोबारा नंबर मिलाने लगी, मगर आगे से एक बार फिर नंबर मसरूफ कर दिया गया। इसने तीसरी कोशिश की, जिसका हाल ये है पहली वाली कोशिशों से मुख्तलिफ नहीं था। एकदम इसका रंग पीला पड़ गया था। इसकी बेबाकी और बहादुरी के गुब्बारे से फौरन हवा निकल गई थी। यकीनन कबीर दादा को इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वक्ती तौर पर इसे टालने के लिए इसने हामी भरी थी, वरना ना तो इसकी जिंदगी में खूबसूरत लड़कियों की कमी थी और ना इसे तनावुश से निकाह पढ़ाने का कोई शौक था। वो अपना कीमती वक्त किसी बेसहारा यतीम लड़की पर जाया नहीं कर सकता था। तनावुश का दिल डूबने लगा था। वहाँ मौजूद तमाम मर्दों की नजर इसके चेहरे पर गड़ी थी। बगैर कोई बात राब्ता मुनक़ता होने पर दिलावर शेख चेका, बेबी, यकीनन तुम्हारे होने वाले शौहर सूरमा शोहर को मालूम हो गया होगा कि तुम पर दिलावर शेख की नजर है। दिलावर शेख तो मौत का दूसरा नाम, और मौत का सामना इस मौलवी जैसा बेवकूफ ही कर सकता है। बहरहाल मौलवी साहब निकाह पढ़ाना शुरू करो। इसने शायद जिंदगी में पहली बार मौलवी महबूब इलाही को तमीज से मुखातिब किया था। जमीन और आसमान तनावुश की निगाहों में चकराने लगे थे। बेख्तियार वो करीब पड़ी चारपाई पर बैठ गई। इसकी माँ फौरन दुहाई देते कमरे से बाहर निकली। नहीं दिलावर शेख, तुमने खुद 14 जमात करने तक की मोहलत दी हुई है और मेरी बेटी अभी 12वीं क्लास में है। सुन माई, मैंने कहा था कि तुम लोग कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे जैसी आप कर चुके हो, और अब तुम्हारी मोहलत खत्म। मैं खुद ही तुम्हारी बेटी को बीए करवा लूंगा, बल्कि इसकी बहुत अच्छी ट्यूशन भी रखूंगा। बुशरा को ये कहते ही वो मौलवी महबूब इलाही को मुखातिब हुआ। अबे मौलवी की औलाद, क्या कहा है? निकाह पढ़ाना शुरू कर। मगर लड़की तैयार नहीं है। मौलवी महबूब इलाही हकलाते हुए मुतारिज हुआ। कैसे तैयार नहीं है? अपनी किसी यार के लिए तो इसने इतना सिंगार कर लिया है, आशिक को भी मायूस नहीं करेगी। मगर जनाब, लड़की रजामंदी तो लाजमी होती है ना? तुम फिक्र ना करो, वो बिल्कुल रजामंद होगी। यकीनन इसे तुम्हारी लाश देखना पसंद नहीं होगी। ये कहते ही इसने जेब से पिस्तौल निकालकर मौलवी महबूब इलाही की कनपट्टी पर रख दिया था। हैरान और परेशान बेटी तनावुश के सर पर और कयामत टूट पड़ी थी। मौलवी साहब को बड़े एतमाद से बुला कर लाई थी। इसने तो दावा किया था कि वो दिलावर शेख इसे हाथ भी नहीं लगा सकेगा, और अब मौलवी साहब को जान के लाले पड़ गए थे। खुदा के लिए ये जुल्म ना करो। वो दिलावर शेख के सामने हाथ बांधते हुए गिड़गिड़ाई। इत्मीनान से बोला, ठीक है, तुम मेरे साथ निकाह पढ़वा लो, मौलवी को कुछ भी नहीं कहूंगा। तनावुश के पूरे वजूद के अंदर बेबसी भर गई थी। इसके दिमाग में मौलवी की बीवी हामिदा की आवाज उभरी, सपने देखना बंद करो लड़की, ऐसा कुछ ड्रामों फिल्मों में तो हो सकता है, हकीकत में नहीं। दिलावर शेख जैसे दरिंदों की रस्सी को मालिक भी ढीला छोड़े रखता है, ऐसी मौजी का हम जैसे कमजोर लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसकी बात मुकम्मल सच थी। अब दिलावर शेख की बात ना मानकर वो बस मौलवी साहब की जिंदगी की दुश्मन ही बन सकती थी। एक लम्हे सोचने के बाद वो भराई हुई आवाज में बोली, ठीक है मौलवी साहब, आप निकाह पढ़ाना शुरू करें। मगर बेटी, मौलवी साहब ने कुछ कहने के लिए लब हिलाने चाहे। इसी वक्त दिलावर शेख इसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद करते हुए दौड़ा, बकवास बंद करो बुड्ढे, शायद तुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। तनावुश बिलखते हुए बोली, दिलावर शेख, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक कमजोर निहत्ते बुजुर्ग पर हाथ उठाते हुए। इस बुड्ढे को भी तो फितने से बात आ जाना चाहिए। जब एक लड़की शादी के लिए तैयार है तो इसे क्या मसला है? इसकी बेटी से तो निकाह नहीं कर रहा जो इसे तकलीफ हो रही है।
बेटी नहीं, बेटी जैसी तो है। मौलवी साहब ने हौसला करके जबान खोली। ऐसी की तैसी तेरी बेटी और तेरी बेटी जैसी की। चल निकाह पढ़ाना शुरू कर। मोहल्ले वालों को जैसे सांप सूख गया था। तमाम खौफजदा अंदाज में ड्रामा देख रहे थे। अगर वो पहले मौलवी साहब के साथ देने पर तैयार हो जाते तो दिलावर शेख में इतनी जरूरत नहीं थी कि अपने 4 साथियों के साथ इनका मुकाबला कर पाता। मगर मुकाबला तो कजा वो शादी में शिरकत के फैसले पर पछता रहे थे। इन्हें तो ये खौफ खाया जा रहा था कि मौलवी साहब के बाद दिलावर शेख इन्हें सदुकोप करना न शुरू कर दे। अब भी सोच ले बेटी, मैं अपनी जिंदगी गुजार चुका हूँ। मेरी मौत से अगर तुम्हारी जिंदगी बच सकती है तो इनकार कर दे। दिलावर शेख की बकवास के बावजूद मौलवी महबूब इलाही हिम्मत नहीं हारा था। फिक्र ना कर बुड्ढे, तेरे मरने की ख्वाहिश को मैं जल्दी पूरा कर दूंगा। ये बेहुदा अल्फाज दिलावर शेख के होंठों पर थे कि तनावुश के हाथ में पकड़े मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। इसने मायूसी भरी निगाह स्क्रीन पर डाली। ये देखकर इसका दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा था कि वो कॉल कबीर दादा के नंबर से आ रही थी। इसने बेसब्री से बटन दबाकर राब्ता जोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। इसकी आवाज से हद दर्जे की शुक्रगुजारी उबल रही थी। वो सलाम का जवाब दिए बगैर गोया वो मज़द ख्वाह हूँ। मेरा मोबाइल फोन मुलाजिम के हाथ में था और मैं वर्जिश में मशगूल था। इसने भी आकर इतला दी है। मैं बस तुम्हारी जानिब निकल पड़ा हूँ। मैं मुंतजिर हूँ। खुशी के मारे इससे बोलना मुश्किल हो गया था। कबीर दादा ने मजीद कोई बात किए बगैर राब्ता मुनक़िता कर दिया था। दिलावर शेख, बारात मेरे घर तक आने के लिए चल पड़ी है। एक बार फिर इसके लहजे में एतमाद दर आया था। शायद तुम मजीद मोहलत हासिल करना चाहती हो, लेकिन याद रखना आज दिलावर तुम्हें साथ लेकर ही जाएगा। तुम्हें अपनी मर्दानगी का सबूत भी तो देना है। वो बेबाकी से बोली। जरूर देना, बस 20-25 मिनट ठहर जाओ। इसी वक्त दिलावर का चमचा करमदीन सर पे मिठाई का टोकरा लादे दरवाजे से नमूदार हुआ। मिठाई तकसीम होने तक तुम्हारे यार का भी इंतजार कर लेते हैं। तुम्हें अगर इसकी मौत के बाद ही मेरी बीवी बनना है तो मुझे क्या एतराज। देरखंड लहजे में कहते हुए वो अपने आदमियों से बोला, चलो भाई हाजिरीन में मिठाई तकसीम करो। क्या याद करेंगे ये लोग। दिलावर शेख की शादी में शिरकत के लिए आए हैं और अब तक फीका मुंह लिए बैठे हैं। जी बोस, कहकर वो सबसे पहले मिठाई का टोकरा दिलावर शेख के करीब लाए। वो एक गुलाब जामुन उठाकर मुंह में रखते हुए बोला, इस खड़ूस मौलवी का मुंह भी मीठा कराओ। उन्होंने मिठाई का टोकरा मौलवी साहब के सामने पकड़ा। मौलवी महबूब इलाही का जी बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि मिठाई को हाथ लगाए। इसे मुस्तजब देख कर तनावुश बोली, चचा जान बेफिक्र होकर मिठाई लें, तुम्हारी बेटी का दूल्हा चंद मिनट में पहुँचने वाला है। हाँ हाँ हाँ, दिलावर शेख ने जबरदस्ती का कहका लगाया। दूल्हा नहीं, कुर्बानी का बकरा कहो जिसने आज दिलावर के हाथों में ज़िबा होना है। मौलवी महबूब इलाही ने बेदिली से मिठाई का एक दाना उठा लिया था, मगर इसने वो दाना मुंह में नहीं डाला था। दिलावर शेख की हराम की मिठाई खाने का इसका कोई इरादा नहीं था। इसकी मिठाई ना खाने पर दिलावर शेख ने कोई इतराज नहीं किया था। वो तो बस खबासत भरी निगाहों से तनावुश को घूर रहा था जो दुल्हन के रूप में कयामत आ रही थी। अलबत्ता इसके चेहरे पर नजर आने वाला इत्मीनान इसे जरा उचंबे में डाले हुए था। इसके वहम गुमान में भी नहीं था। आने वाले होलनाक वक्त का तस्वुर मौजूद नहीं था, वरना वो वहाँ से भागने में 1 मिनट भी ना लगा था। इसके कारिंदे बमुश्किल लोगों में मिठाई तकसीम कर पाए थे कि ब्रेकर की जोरदार चरचराहट की आवाज इनके कानों में पड़ी। तनावुश के होंठों पर खूबसूरत तबस्सुम नमूदार हुआ। इसका दूल्हा इसके ख्वाबों का शहजादा पहुंच गया था। तमाम लोग दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। एक झटके से दरवाजा खुला। इसके साथ ही कबीर दादा के कदावर वजूद ने तनावुश की नजरों को ठंडक बख्शी। इसने स्पोर्ट्स पजामे के ऊपर टी शर्ट पहनी हुई थी जिससे इसके बाजुओं की मछलियां तड़पती हुई नजर आ रही थी। यकीनन वो अपनी वर्जिश अधूरी छोड़कर तनावुश से किया वादा निभाने आ पहुंचा था। इसके उक़ब में इसकी तरह 4 कद आवर मुहाफिज मौजूद थे। इनमें से वो दरवाजे पर रुके थे जबकि 2 कबीर दादा के उक़ब में चलते हुए आ रहे थे। इनके हाथ में मुतअद्दिद राइफलें नजर आ रही थी। कबीर दादा हाजिरीन पर नजर डालने की जहमत किए बगैर सीधा तनावुश के करीब पहुंचा। मैं आ गया हूँ। इसकी धीमी आवाज भी ऐसी थी जैसे बादल गरज रहा हो। तनावुश को लगा सचमुच उसका महबूब पहुंच गया हो। कबीर दादा का चेहरा एक लम्हे इसकी चाहत भरी निगाहों के हसार में मुकीद रहा। इसके बाद तनावुश ने अपनी निगाहें दिलावर शेख की तरफ मोड़ी। इसकी टांगों की लर्जिश वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। आप बैठे ना। इसने चाहत भरे लहजे में कबीर दादा को बैठने की दावत दी। अज़बात में सर हिलाते हुए इसने चारपाई पर जगह संभाल ली। दोनों मुहाफिज इसके उक़ब में खड़े हो गए थे। दिलावर शेख, मेरा दूल्हा पहुंच गया है। तनावुश इसके करीब पहुंचते हुए इत्मीनान भरे लहजे में बोली। मैं कबीर दादा। वो मैं तनावुश नजर चुराते हुए वो कबीर दादा के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कबीर दादा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। सुना है तुमने मेरी होने वाली बीवी को कहा है कि इसके शौहर को तुम अपने हाथों से खत्म करोगे। चलो मैं आ गया हूँ, अपनी कसम पूरी कर लो। मुझे माफ कर दो दादा। मैं नहीं जानता था कि ये आपकी मंजूर नजर है। माफ किया।
कबीर दादा ने बेपरवाही से हाथ लहराया। अब जाकर मेरी बीवी से माफी मांगो, मुझे माफ कर दो। दिलावर शेख फौरन तनावुश के सामने हाथ बांध दिए थे। तनावुश के मुंह से इत्मीनान भरा सांस खारिज हुआ। दिलावर शेख, इस पल के ख्वाब में जाने कब से देख रही हूँ। तुमसे बहुत हिसाब किताब रहता है और माफी भैया से मांगना जिन्हें तुमने बेगुनाह कत्ल किया था, और इसके लिए यकीनन तुम्हें इनके पास ही जाना पड़ेगा। ये कहते ही वो माँ की जानिब मुड़ी। चले माँ जी, हमारा इंतजार तो इख्तिताम पजीर हुआ। हाँ बेटी। बुशरा ने बावर्ची खाने की दीवार के सहारे खड़ी 2 लाठियां उठाई। एक तनावुश को देखकर दूसरी इसने खुद थाम ली। इन मजबूत लाठियों का बंदोबस्त उन्होंने सुबह ही से कर रखा हुआ था। माफ कर दो खाला। इनके तेवर देखकर दिलावर शेख के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। कर देंगे, पहले कफारा तो अदा कर लो। बुशरा को खुद अपनी आवाज बेगानी लग रही थी। इसके जवान बेटे को दर्दनाक मौत के हवाले करने वाला इसके सामने मौजूद था। शाहनवाज का कटा फटा खून चका जिस्म हमेशा इसकी निगाहों के सामने रहता। न जाने मरने से पहले इसका बेगुनाह बेटा किन अजियतों से गुजरा था, और इस सब का जिम्मेदार दिलावर शेख अब बेबसी की हालत में इसके सामने मौजूद था। दूसरी तरफ तनावुश थी, जिसकी जिंदगी इसने अजीरन कर दी थी, जिसकी आंखों के सपने इसने छीन लिए थे, जिसका घबरू भाई इसने इस वजह से कत्ल कर दिया था कि इसने अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत की कोशिश की थी। आज इस बहन को अपने भाई की मौत का बदला लेने का मौका मिल गया था। भाइयों पर तो बहनें यूं भी कुर्बान सदके वारी जाती हैं, वो कैसे अपने भाई के कातिल को माफ कर देती। माँ बेटी ने हाथ में पकड़ी लाठियां बुलंद की। प्लीज प्लीज खुदा के लिए। दिलावर शेख गिड़गिड़ाया, मगर इसकी मिन्नतजारी की परवाह किए बगैर इनकी लाठियां एक झटके से नीचे आईं और दिलावर शेख के दिफाई अंदाज में उठे हुए हाथों पर कयामत टूट पड़ी थी। इसके मुंह से बुलंद बाग चीख नमूदार हुई। हाय मर गया। तनावुश और इसकी माँ के कलेजों तक ठंडक की लहर उतर गई थी। इसके बाद इनकी लाठियां एक तवादर से दिलावर शेख के जिस्म पर बरसने लगी। वो इसके निचले धड़ को निशाना बनाए हुए थे। दिलावर शेख की चीखो पुकार, उसके तड़पने का मंजर इतना खुशकुन था कि वो जल्दी जल्दी इस खेल को खत्म नहीं करना चाहती थी। मजबूत लाठियों की ज़रबों ने चंद लम्हों में दिलावर शेख को जमीन बोझ कर दिया था। माँ बेटी दिल जमाई जिस पर लाठियां बरसाती रही, यहाँ तक कि दिलावर शेख के मुंह से आवाजें निकलना मौकूफ हो गया था। छाती पर पड़ने वाली लाठी की जोरदार ज़रब ने इसकी पसलियों को तोड़कर दिल को नाकारा कर दिया था। इसके बावजूद माँ बेटी के हाथ मुसलसल चलते रहे। कबीर दादा बड़ी दिलचस्पी से मंजर देख रहा था। हाजरीन में महफिल के दिल में भी खौफ से धड़क रहे थे। एक तरफ तो इन्हें दिलावर शेख के अंजाम से खुशी हो रही थी, तो इसके साथ वो कबीर दादा के पुररौब शख्सियत से भी खौफ का महसूस कर रहे थे। न जाने वो अपनी होने वाली बीवी को दुख पहुंचाने के गुनाह में किस किस को तशद्दुद का निशाना बनाता। दरवाजे पर खड़े इसके कवि हैकल मुहाफिजों की मौजूदगी में कोई घर से बाहर भी तो नहीं निकल सकता था। दिलावर शेख के कारिंदों के चेहरों पर मौत की जर्दी को साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था। दिलावर शेख की भयानक मौत के बाद भी जब माँ बेटी के लाठे बरसाना जारी रहा, तो मौलवी महबूब इलाही हिम्मत करके आगे बढ़ा और तनावुश का हाथ पकड़ते हुए बोला, बस करो बेटी, ये मुझे अपने करतूतों के साथ अल्लाह पाक की अदालत में पहुंच गया है। इसके साथ ही इसने बुशरा की लाठी भी थाम ली थी। दोनों माँ बेटी चौंकते हुए जैसे किसी गहरे सपने से बेदार हुई थी। मुसलसल लाठियां बरसाने से इनका सांस धोखने की माने चल रहा था। इनके रुकते ही कबीर दादा के पुररौब आवाज उभरी। दिलावर शेख के कारिंदे सामने आए। वो चारों सूरमा लरहस्ती टांगों से सामने हुए और भागकर कबीर दादा के कदमों से लिपट गए। अल्लाह पाक का वास्ता, हमें माफ कर दो, हमारे बाप की तौबा जो आइंदा गलत काम किया। चारों एक जबान होकर वावेला करने लगे। पीछे हटकर बात करो। कबीर दादा ने इन्हें दूर झटकने की कोशिश की। जब तक आप हमें माफ नहीं कर देते, हम कदमों से सर नहीं हट उठाएंगे। चारों माफी लिए बगैर उठने पर तैयार नहीं थे। कबीर दादा उकम में मौजूद अपने मुहाफिजों को मुखातिब हुआ, मेरे 3 गिनने तक इनमें से जो खड़ा ना हो पाए इसे गोली मार देना। मगर इसकी गिनती शुरू करने से पहले वो चारों हाथ बांधते हुए खड़े हो गए थे। इनके साथ कोई हिसाब किताब करना है। इस मरतबा इसका मुखातिब तनावुश थी, जो अकीदत भरी नजरों से घूर रही थी। तनावुश ने नफी में सर हिला दिया। अपने सरगना की लाश को ठिकाने लगाना तुम चारों की जिम्मेदारी है। अगर ये लाश पुलिस को मिल गई तो शायद इन्हें मजीद 4 लाशों की तशवीश भी करना पड़ जाए। किसी को भी नहीं मिलेगी दादा, इनमें से एक ने जुर्रत करके जबान खोली थी। अब दफा हो जाओ, और इसके बाद तुम या तुम्हारा कोई साथी भी इस मोहल्ले में नजर आया तो हमेशा के लिए नजर आना बंद हो जाएगा। कभी भी नहीं आएंगे, यहाँ से गुजरेंगे भी नहीं। चारों पर अभी तक लर्जा तारी था। जुर्म की दुनिया में कबीर दादा का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं था। ज़ेरे ज़मीन हलकों में वो एक अफसानवी किरदार जैसी शोहरत रखता था। इनके वहम गुमान में भी नहीं था कि इस आम से मोहल्ले के सबसे करीब घर में वो एकदम यूं आकर बैठ जाएगा और वो लड़की जिसे पिछले 1.5 साल से वो तंग करते आ रहे थे, इसे अपनी बीवी का खिताब दे देगा।
کبیر دادا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں دفع ہونے کا کہا اور تناوش کی طرف متوجہ ہو۔ میرا خیال ہے میرا کام ختم ہو گیا۔ جی ہاں، بس ایک چھوٹی سی رسم باقی ہے، اطمینان بھرے لہجے میں کہتی ہوئی اس نے سر پر دوپٹہ درست کیا اور مولوی محبوب الہی کی طرف متوجہ ہوئی۔ چچا جان، ہمارا نکاح پڑھا دیں۔ مولوی محبوب الہی کی آنکھوں میں شدید حیرانی کی لہریں اٹھی، مگر اس نے کوئی سوال پوچھنے کے بجائے وہ بسم اللہ پڑھ کر نکاح کا خطبہ پڑھنے لگا۔ خطبہ پڑھتے ہی اس نے کبیر خان سے نام و ولدیت پوچھا۔ اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، کبیر علی ولد عمر علی۔ حق مہر عصمت و بشرا ہاتھوں سے مستفسر ہوا تھا۔ ماں کے کچھ کہنے سے پہلے تناوش بولی، حق میں دلاور شیخ کی موت ہی تھا مگر بیٹی، وہ اصرار کرتی ہوئی بولی، چچا جان جو عرض کر رہی ہوں اسے مان جائیں۔ اور مولوی محبوب الہی تکرار کیے بغیر ایجاب و قبول کرانے لگا۔ کبیر دادا نے اس زمن میں زبان نہیں کھولی تھی، وہ بس دلچسپی سے تناوش کی باتیں سنتا رہا۔ اس چھوٹی سی لڑکی میں خوبصورتی کے علاوہ بھی کوئی تو خاص بات تھی جو وہ اس کی باتوں پر یوں محظوظ ہو رہا تھا۔ نکاح کی رسم پوری ہوتی ہی وہ کھڑا ہو کر تناوش سے پوچھنے لگا، تمہیں لینے کے لیے کس وقت گاڑی بھیجوں؟ میں آپ کے ساتھ ہی چل رہی ہوں۔ وہ پختہ لہجے میں بولی، نہیں۔ کبیر دادا نے نفی میں سر ہلایا، رات کے 10 بجے تمہیں لینے کے لیے کار پہنچ جائے گی۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ چند گھنٹے مزید بھی گزار لو اور کوئی رسم وغیرہ رہتی ہو تو وہ بھی پوری کر لو۔ آخری فقرہ اس نے متبسم ہو کر کہا تھا۔ تناوش کو محسوس ہوا کہ مسکراتے ہوئے مزید اچھا لگنے لگتا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ تبسم اس کے چہرے پر خال خال ہی نمودار ہوتا تھا۔ اس کے رخصت ہوتے ہی مولوی صاحب نے بھی جانے کی اجازت مانگی۔ مولوی محبوب الہی کے سامنے سر جھکاتے ہوئے وہ ممنونیت سے بولی، چچا جان آپ کے احسانات ہمیشہ قرض رہیں گے۔ چچا بھی کہتی ہو اور احسانات کا ذکر بھی کرتی ہو۔ پگلی بیٹیوں پر احسان نہیں کیے جاتے، ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مولوی محبوب الہی اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرنے لگے۔ اللہ پاک ہر لڑکی کو ایسے ہی سرپرست عطا کرے۔ گلوگی لہجے میں کہہ کر وہ ماں کی طرف مڑی اور اس کے گلے لگ کر رو پڑی۔ محلے والے بھی نادم اور خفیف انداز میں ماں بیٹی کے قریب ہو کر انہیں مبارکباد دینے لگے۔ وہ ساری کہانی ان کے سروں سے کافی اونچی گزری تھی۔ کبیر دادا جیسی شخصیت کی آمد، دلاور شیخ کی بھیانک موت، ماں بیٹی کی کارروائی، تناوش کا نکاح، سب کچھ نہایت عجیب تھا، مگر وہ سوال کرنے کی جرات نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے لیے بس یہ بات باعث اطمینان تھا کہ کبیر دادا نے دلاور شیخ کے کارندوں کو ہمیشہ کے ان کے محلے سے دفع ہو جانے کا حکم دے دیا تھا۔ محلے کی عورتوں میں بھی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کئی ایک نے دلاور شیخ کا نام انجام صحن میں آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تناوش کے شور کو دیکھ کر تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ تناوش سے عمر میں کافی بڑا تھا، مگر اس کا رکھ رکھاؤ، روب، دبدبہ ایسا تھا کہ عمر کا فرق بالکل ہی پس منظر چلا گیا تھا۔ سب سے بڑھ کر تناوش کا رویہ حیرت میں ڈالے ہوئے تھا۔ کوئی دلہن نکاح کے وقت یوں باتیں نہیں کیا کرتی، نہ وہ اپنا حق مہر کے متعلق منہ کھولتی ہے اور نہ شوہر کو یوں مشورہ دیا کرتی ہے، مگر وہاں اتنے عجیب حالات ظہور پذیر ہوئے تھے کہ کسی کے گمان بھی نہیں آ سکتے تھے۔ وہ کس بات پر حیرت ظاہر کرتے۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد مرد حضرات بھی وہاں سے کھسک لیے تھے۔ ان کے جانے کے بعد عورتوں کو کھلی آزادی مل گئی تھی۔ تمام نے تناوش اور اس کی ماں کو گھیر لیا تھا۔ یوں بھی شادی کے دن دلہن مرکز میں نگاہ ہوتی ہے، مگر وہ تو ایسی دلہن تھی جس نے تمام کے دماغ کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ گھر میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، کوئی ماں بیٹی کو مبارکباد دے رہی تھی تو کوئی دلاور شیخ جیسی موذی کی موت پر اظہار تشکر کر رہی تھی، کوئی اس حیران کن واقعے پر تبصرے میں مشغول تھی۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، یوں بھی عورت ذات باتیں کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ سننا اس نے کسی کی نہیں ہوتی، اپنے کہے جانا اور دوسرے کی سنے بغیر سر ہلاتے جانا عورتوں کی عادت نستانیہ ہوتی ہے، اور اس وقت وہاں اسی عادت کا بھرپور طریقے سے اظہار ہو رہا تھا۔ عورتوں کے سوالات سے بچنے کے لیے تناوش روایتی دلہن کی طرح خاموشی سے گھونگھٹ میں چھپ گئی تھی۔ جو وقت گزر رہا تھا اس کا دل اندیشوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ کبیر دادا جیسی شخصیت کے بارے میں سوچ کر اس کی رہی صحیح ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ دلاور شیخ کا انجام تو اس کی تمنا کے مطابق ہو گیا تھا، مگر اپنی زندگی سے اندھیروں میں گم نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے کبیر دادا نے اسے کتنا عرصہ اپنے پاس رکھنا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اگلے دن کا سورج طلوع ہونے تک وہ طلاق کے 3 الفاظ کا تحفہ لیے گھر کی دہلیز پار کر چکی ہوتی۔ ایسا ہونے کی صورت میں ماں بیٹی لوگوں کا سامنا کیسے کرتی؟ تمام نے تو یہی کہنا تھا کہ بڑے غنڈے سے اپنی عزت کا سودا کر کے چھوٹے غنڈے سے عزت بچانے کا کیا فائدہ؟ کیوں نہیں فائدہ ہے؟ اس نے زور و شور سے اپنی سوچ کی مخالفت کی تھی۔ میں نے اپنے باپ جیسے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے قدم اٹھایا ہے، پھر کبیر دادا سے میرا نکاح ہوا ہے، اور نکاح کے بعد ہر مرد اپنی بیوی کے جسم کا حقدار بن جاتا ہے، تو کبیر دادا کو یہ حق کیوں نہیں مل سکتا؟ اور ہمارے ملاپ کو عزت و فروشی کیسے کہا جا سکتا ہے؟
باقی رہی طلاق کی بات تو وہ تو پہلی رات کی دلہن کو بھی مل جایا کرتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دیتی رہی، اس ماں عورت کے سوالات پر یہ سب میرے مولا کا کرم ہے کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ خود خاموش بیٹھی آنے والے ہولناک وقت کو سوچ رہی تھی۔ کبھی خود کو تسلیاں دینے لگتی، کبھی اپنے اللہ پاک سے خیر و عافیت مانگنے لگتی۔ کبیر دادا کے بارے میں اس کا دل متضاد قسم کے احساسات کا شکار تھا۔ ایک طرف وہ سوچتی کہ اچھا ہے جتنی جلدی نکاح طلاق دے دے، اتنی جلدی ہی میں نارمل زندگی گزارنا شروع کر دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نگاہوں میں کبیر دادا کا پررعب اور مردانہ وجاہت سے بھرپور چہرہ گھومنے لگا۔ اس نے کسی ایسی ہی کی تو سپنے دیکھے تھے، کوئی ایسا جو اس زمانے کے ہر سرد و گرم سے بچا سکے، کوئی ایسا جو اس کی طرف بری نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نکال سکے، کوئی ایسا جس کا سہارا پا کر دنیا کا ہر خوف اور اندیشہ اس کے دل سے زائل ہو جائے۔ اور وہ ایسا ہی تو تھا دلاور شیر، جسے گنڈے نے اسے دیکھتے ہی اپنی شلوار گیلی کر لی تھی۔ پولیس کے 5-6 محافظ ساتھ پھر آنے والے جسٹس کی ٹانگیں اسے دیکھتے ہی کانپنے لگی تھی، تو کوئی اور کیسے اس کا سامنا کرتا۔ گھنٹے 1.5 گھنٹے تک زیادہ تر عورتیں رخصت ہو گئی تھی، بس 2-3 پڑوسنے اور تناوش کی چند قریبی سہیلیوں کے علاوہ وہاں کوئی باقی نہ رہا تھا۔ باقی عورتوں کی طرح اس کی سہیلیاں بھی اصل بات جاننے کے لیے بے چین تھی۔ عورتوں کے جاتے ہی وہ اسے کمرے میں لے آئیں۔ اس کے ساتھ ہی سلمیٰ نے تمام کے ذہنوں میں مچلتے سوالوں کے الفاظ کی شکل دی۔ ارے کبیر خان کے متعلق تم نے جتنا بتایا تھا اس سے اس کو زیادہ ہی شاندار شخصیت کے مالک نکلے ہیں۔ سچ بتاؤ اسد اللہ کہاں سے ڈھونڈا؟ تناوش ہنسی۔ کیوں، تمہیں بھی کسی ایسے کی ہی تلاش ہے؟ سلمیٰ حسدناک لہجے میں بولی۔ اللہ پاک کی قسم کوئی ایسا ملے تو خوشی سے نہ مر جاؤں۔ تناوش اس پر چوٹ کرتے ہوئے بولی، مطلب جس سے تمہاری موت مطلوب ہو، تمہارے لیے ایسے ہی دلہے کی دعا کرے؟ وہ تو میں نے بطور محاورہ بولا ہے، سلمیٰ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اب اصل بات پھوٹو۔ کون سی اصل بات؟ سلمیٰ نے کہا، یہی کہ کبیر آپ کو کہاں ملے، کیسے پسند کیا، اور تم نے اتنا عرصہ ہم سے کیوں یہ بات چھپائے رکھی، اور اس سے پہلے تم نے کبیر کو دلاور شیخ کے بارے میں کیوں خبر نہ دی، وغیرہ وغیرہ۔ شازیہ، نازیہ، اقرا اور صالحہ بھی پرشوق انداز میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ تناوش نے دھیمے لہجے میں کہا، سچ تو یہ ہے ان سے میری کل ہی ملاقات ہوئی ہے۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ اقرا نے اس کی پیٹھ پہ دھپا لگایا۔ بکواس نہیں کر رہی، حقیقت بتا رہی ہوں، شازیہ نے کہا۔ مگر ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہاں بالکل۔ باقیوں نے بھی شازیہ کی تائید میں سر ہلا دیا۔ جب اللہ پاک چاہے تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے، سلمیٰ جل کر بولی۔ کوئی واسطہ، کوئی تعارف، کوئی میل ملاپ بھی ہوا، یا کبیر خان صاحب براہ راست آسمان سے ٹپکے جنہیں محترمہ تناوش نے جھولی پھیلا کر سنبھال لیا؟ یاد ہے نا کل میں کالج نہیں آئی تھی، سلمیٰ نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ ہاں اچھی طرح یاد ہے، اگر کالج سے چھٹی کرنے پر کبیر خان جیسا دلہا مل سکتا ہے تو میں ہمیشہ کے لیے کالج جانے سے رک جاؤں گی، تناوش نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ ہر اندھے کے پاؤں تلے بٹیر نہیں آیا کرتا، نہ ہما ہر شخص کے سر پر بیٹھا کرتا ہے۔ اقرا نے بے صبری سے کہا، یار فلسفے کو چھوڑو اور اصل بات بتاؤ۔ نازیہ بولی، ہاں جلدی جلدی اصل واقعہ سناؤ، یہ نہ ہو کبیر خان صاحب محترمہ کو لینے پہنچ جائے، آخر اتنی پیاری دلہن کے بغیر وہ بھی تو اداس ہو گئے ہوں گے۔ کاش ایسا ہوتا، حسناک انداز میں سوچتے ہوئے اس کے منہ سے ٹھنڈا سانس خارج ہوا اور وہ انہیں تفصیل بتلانے لگی۔ کل میرا دل کالج جانے کو نہیں کر رہا تھا، میں یوں ہی کسی سمت کا تعین کے بغیر شہر میں پھرتی رہی۔ ایک بڑے ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے میری نظر پولیس کے سپاہیوں کے جھرمٹ میں ہوٹل سے باہر آتی ایک شخصیت پر پڑی۔ میرے دل میں ایک دم اسے اپنے حالات بتانے کا واقعہ پیدا ہوا۔ وہ اپنی قیمتی کار میں بیٹھ کر ہوٹل سے باہر آنے والی روش پہ آ رہا تھا۔ میں اسے روکنے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ سڑک پر ایک مرسیڈیز نے نمودار ہو کر اس شخص کا راستہ روک دیا۔ اور جانتی ہو مرسیڈیز میں وہ سوار تھے، وہ کون؟ شازیہ نے مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے اپنے دائیں بائیں کی انگلیوں کو بھی سوالیہ انداز میں حرکت دی۔ ان کے ہونے والے وہ یار، اب خاموشی سے بات سنو، سلمیٰ نے بیزاری بھرے انداز میں شازیہ کو جھڑکا۔ باقی بھی شازیہ کو خشمگین نظروں سے گھورنے لگی تھی۔ اچھا سوری یار، اب نہیں بولتی، شازیہ نے فوراً اپنے ہاتھ بلند کر لیے۔ تناوش دوبارہ بولنے لگی۔ ہوٹل سے نکلنے والی شخصیت ایک جج کی تھی، اور یقین مانو پولیس کے محافظوں میں گھرے اس جج نے جب انہیں دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ غالباً ان کے کسی آدمی کا مقدمہ اس جج کی عدالت میں پھنسا تھا۔ انہوں نے جج کو کل تک اپنے آدمی کے حق میں فیصلہ سنانے کا حکم دیا، جسے جج نے بغیر کسی حجت کے مان لیا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا مجھے کس کے سامنے فریاد کرنا چاہیے، بس موقع ملتے ہی میں نے اپنی پریشانی کے سامنے دہرا دی۔ انہوں نے مجھ سے شادی کرنے کی شرط پر میری مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ بس اتنی سی بات ہے، باقی کا سارا واقعہ تو تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تناوش نے گول مول انداز میں انہیں سارا واقعہ کہہ سنایا۔ ارے کہیں وہ دلاور شیخ سے بھی بڑا، میرا مطلب ہے کوئی ایسا ویسا آدمی تو نہیں ہے؟ شازیہ نے محتاط انداز میں جو کہا وہ وہی تمام کے دماغ میں گونج جاتا۔ اگر اس کے بعد انہیں ویسا کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تناوش سچ مچ ناراض ہونے لگی۔ حالانکہ
हालांकि ये बात तो इसे अच्छी तरह पता था कि कबीर दादा क्या था। बाकी तमाम सहेलियां भी खुशमगीन नजरों से शाजिया को घूरने लगी थी। गो अंदाजा तो इन्हें भी हो गया था कि कबीर खान की असलियत क्या थी, मगर ऐसे सच पीठ पीछे बोले जाते हैं, मुंह पर नहीं। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नए आने वाले दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे।